Hello students, today we are going to understand the transportation topic from life process. Now first we will understand what is transportation. It is a process of movement of glucose, oxygen and other organic and inorganic substances from one part of body to another. एक ऐसा काम, ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी में जितना भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी न्यूट्रिशन, मिनरल, वाटर, हॉर्मोन्स, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उस काम को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, हमें दोनों समझना है. तो पहले हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन दो ही चीज़ों का होता है, वाटर और मिनरल्स का और फूड का. Mainly we have two organs for the transportation. The first one is a xylem and the second one is a phloem. Xylem को हम vascular, phloem दोनों को हम vascular tissue और conducting tissue भी बोलते हैं. Xylem पानी और minerals का conduction करता है. Phloem food का, soluble substances का या hormones का conduction plant में करता है. तो अगर हम बात करें तो जाइलम में कंडक्शन करने के लिए दो फोर्सेस का यूज होता है. देयर आर टू प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड इन द जाइलम, दैट इज ट्रांसपीरेशन एंड द अदर वन इज रूट प्रेशर. ट्रांसपीरेशन को आप एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हो. एसेंट ऑफ सैप का मतलब है, सैप इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म और वी कॉल्ड इट अ फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल. और एसेंट का मतलब इज अ असेंडिंग ऑर्डर, समथिंग व्हेन गोइंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड इज अ एसेंट ऑफ सैप. So xylem, we all know that it's a dead tissue and it is made up of four different components: xylem vessels, tracheids, xylem parenchyma and sclerenchyma. And only the two main tissues, vessels and tracheids, helps in the conduction. So what happens in the transpiration and root, how these two forces act in the plant? Suppose if there is this is a kind of, like we have a plant and these are the roots present in that plant. Or if we talk about, this is the outermost, this is the leaf. So what happen is the thinnermost part of the plant is a root hair. The thinnermost part of the plant is a root hair that originates from the main root. Now if there is a soil and the soil is surrounded with lots of water, then the water is absorbed into the main root, then it is conducted to the stem xylem, and then from the stem xylem it is passed to the leaf xylem, and from the leaf xylem it is evaporated into the air. तो यहाँ से transpiration is a process of evaporation of water from the stomata, loss of water from the stomata. So transpiration, stomatal process of the leaves that occurs and which pulls the water upward. This is how the water moves up in the xylem vessels. If we understand it in the detailed manner, for example, we think like, if we think that this is a plant and a root, so how the root pressure act in the plant. So if we consider this is a root and this is a soil, and we make it a very thin portion of the root hair like this. We make a very thin portion of the root hair. I make a little longer root hair so that you can see easily. This is a very thin portion of the root hair and this root hair is surrounded by lots of water. तो होता क्या है, कहता है कि जो दो फोर्सेस लग रही हैं, पहली लग रही है रूट प्रेशर, दैट इज अ प्रेशर exerted from the root. So root pressure is acting somewhere here. रूट प्रेशर यहाँ लग रहा है. Remove this. रूट प्रेशर यहाँ लग रहा है और जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो इधर लीफ में. सो दिस इज अ वन ब्रांच फ्रॉम वेयर दिस इज अ लीफ, राइट. सो व्हेन दिस व्हाट हैपेंस इन दिस रूट प्रेशर, कहते हैं कि जब when there is a less amount of solution, there is a solution inside the root and there is a solution outside the root in the soil also. पानी की फॉर्म में होता है, इसमें सेल के सेल साइटोप्लाज्म की फॉर्म में होता है. कहता है जब इसमें दोनों तरफ सोल्यूशन होता है तो रूट प्रेशर में जो मूवमेंट होता है मटेरियल का वो डिफ्यूजन की वजह से होता है. तो डिफ्यूजन इज द ओनली प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस. नाउ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. नाउ व्हाट हैपेंस इन द डिफ्यूजन, दैट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो होता क्या है कि पहले यहाँ पर पानी में मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स रूट
को एब्जॉर्ब करते हैं, रूट में एब्जॉर्ब होते हैं बाय द कंजम्पशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। सो मिनरल रूट के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल का कंजम्पशन करके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन, अंदर में लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हो जाता है। ऐसा होने की वजह से now the water starts moving in, the water also starts moving in. So there are two types of force acting in the absorption of water by the roots. एक तो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम इस चीज़ को कि रूट हेयर बिल्कुल सराउंडेड होता है सॉइल और वाटर पार्टिकल से, और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पहले होता है, दैट इज ऑफ आयंस या मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स एक्टिवली बाय द कंजम्पशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल दे आर एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, जिसकी वजह से अंदर का वाटर कंसंट्रेशन लो हो जाता है, क्योंकि अंदर अब सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया है, और बाहर की तरफ वाटर कंसंट्रेशन हाई होता है और अंदर कंसंट्रेशन लो होने की वजह से वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन, दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। अब रूट प्रेशर एक तरह से वो प्रेशर है जो प्रेशर रूट में पानी लगा रहा है, पानी पीछे वाला मॉलिक्यूल आगे वाले मॉलिक्यूल को पुश करता है आगे की तरफ, एंड इट स्टार्ट्स पुशिंग द वाटर फॉरवर्ड। तो ये रूट प्रेशर इस तरह एक्ट करेगा। कहते हैं कि अगर ये रूट प्रेशर इस तरह पुश कर रहा है, देन हाउ द वाटर रीचेज हाई अप इन द टॉल ट्रीज, तो ऊपर की तरफ कैसे जाएगा? तो कहते हैं नीचे से रूट प्रेशर पानी को पुश कर रहा है, लेकिन पानी ऊपर से कैसे खींचेगा? ऊपर से स्टोमेटल पोर्स से, दीज आर द स्टोमेटल पोर्स, these are the small pores present on the leaves. Suppose this is the stomatal pore, so the water will evaporate from the into the air with the help of high temperature or evaporation process, and when the water is evaporated then it will be pulled by the other water molecule and the water is pulled up. So ये जो हुआ है ये ascent of sap है, यहाँ से root pressure लग रहा है, यहाँ से ascent of sap लग रहा है, ये दोनों के दोनों forces मिलकर water और mineral conduction करने में help करता है। So there are the two, ascent of sap is the movement of water molecule from lower to upward पोजिशन। सो हमें ये भी मालूम है कि जाइलम ऑलवेज कंडक्ट वाटर फ्रॉम लोअर टू हायर पोर्शन, हायर रीजन, यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लोअर टू हायर रीजन, और यू कैन से डाउनवर्ड टू अपवर्ड पोजिशन, upward direction. So this is what happens in the xylem, right? So xylem is a dead tissue. Again we repeat once again, in the plants the water and minerals are conducted by the xylem, and it is a dead tissue. It always conduct water from lower portion of plant to the higher portion of the plant, and there are the two forces acting on the plant, that is transpiration और या ascent of sap बोलते हैं, और दूसरी फोर्स रूट प्रेशर होती है। रूट प्रेशर और ascent of sap करने में जो मेन फंक्शन होता है, कौन से प्रोसेस का होता है? दैट इज अ डिफ्यूजन, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो concentration, and it can happen in the osmosis also. Like if we make the cells here, we can understand very well, we can understand how the water is conducted in these cells. Now the solution in the present outside the root hair or the root or the plant, that has a high concentration of salt, but the plant has high concentration solution of water, and there is a low concentration of water. Now what happens? There is the iron present in the soil that is absorbed into the root hair by the consumption of ATP, that is active transportation happening, and when this happens, जब अंदर ions चले जाते हैं, minerals चले जाते हैं, तो अंदर में मिनरल या सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, पानी का कम हो जाता है, बाहर की तरफ सॉइल के पार्टिकल्स, सॉइल के पास वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो फिर पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल अपने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को आगे की तरफ पुश करता है, तो रूट प्रेशर फोर्स यहाँ पर एक्ट करती है। अब रूट प्रेशर तो नीचे से एक्ट कर रही है और एक सेल से दूसरे सेल में ये पुश करता है, बट इट कैन नॉट एक्ट ऑन द वेरी हाई टॉल ट्रीज बिकॉज द वाटर कैन बी पुल्ड बैकवर्ड बाय द पुल ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। सो व्हाट देयर इज अनदर फोर्स एक्टिंग हियर, दैट इज अ ट्रांसपीरेशन पुल। तो ये ऊपर से लगती है, ये स्टोमेटा से पानी को बाहर की तरफ खींचती है, एंड देन द वाटर विल बी पुल्ड लाइक अ चेन from the transpiration, and from here it is pushed
with the help of root pressure. So this is how the xylem conduct the water. Now we will discuss how the food is conducted in the plant. पौधों में food कैसे conduction होता है? As we all know that food is conducted by the phloem tissue. Now phloem is also a vascular tissue, complex conducting tissue, and it is also made up of 4 types of cells. That is, the main 2 types of cells is sieve tube and the companion cell. Then these 2 cells are very much close to each other. They are combined together. We have done in the 9th class. And in the companion cell helps the sieve tube to do various kinds of activities that is necessary for food conduction. So यहाँ पर food का conduction हो रहा है. Food यहाँ पर starch form में conduction होता है, sucrose की form में conduction होता है इसमें actually. और साथ साथ अगर कोई पूछे कि फूड के साथ और भी चीज़ें कंडक्ट होती हैं तो येस देयर आर सो मेनी अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस एज वेल एज सम हार्मोन्स आल्सो एज कंडक्टेड बाय द फ्लोएम. सो नाउ द फ्लोएम, इन दिस फ्लोएम व्हाट हैपेंड, इफ वी टॉक अबाउट दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ बिग स्टेम ऑफ द प्लांट एंड फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट. सो दिस इज वेयर द फूड इज प्रोड्यूस्ड. यहाँ पर फूड बना रहे हैं हम, मतलब ये हमारी लीव्स हैं प्लांट में, ग्रीन पोर्शन है एंड द ग्रीन पोर्शंस आर मेकिंग फूड एंड द फूड इज कंडक्टेड फ्रॉम द जाइलम टू द मेन ट्री. नाउ व्हाट हैपेंस, द फूड जो हमें हो यहाँ पर कंडक्शन, फूड का जो प्रिपरेशन हुआ है, इस फूड को इस ग्रीन पोर्शन से वी हैव टू सप्लाई इट टू द नॉन ग्रीन एरिया. अब नॉन ग्रीन एरिया पौधे में ऊपर भी नीचे भी कहीं पे भी हो सकते हैं. तो हम मान लो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक नॉन ग्रीन एरिया क्रिएट करें तो ये हमारा सोर्स है, हमें फूड को यहाँ पहुँचाना है. तो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए फूड में कोई कंडक्टिंग टिश्यू, कोई ट्यूब, कोई पाइपलाइन चाहिए जो सा इसको कंडक्शन करे. तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम कंडक्टिंग वेसल जिसको आप सीव ट्यूब कहते हो, यहाँ पर हमने सीव ट्यूब बना दिया. right? So this is a sieve tube and this is companion cell is also attached with it. यहाँ पर इसके साथ ही companion cell भी होता है. तो कहते हैं कि जब food conduction होता है तो food को इसके अंदर सुक्रोज की फॉर्म में डिसॉल्व किया जाता है. जब इसके अंदर सुक्रोज की फॉर्म में यहाँ से सुक्रोज फूड बनाकर इसके अंदर बहुत सारा सुक्रोज डाला जाएगा. Now this process of addition of food into the phloem is done by ATP molecule. ये ATP molecule कंज्यूम करता है और फूड को फ्लोएम के अंदर पुश करता है. और जब यहाँ पर फूड फ्लोएम में पुश हो जाता है, सारा का सारा सुक्रोज भरेगा, तो इसके साथ ही जाइलम भी होता है. जाइलम बिल्कुल इसके साथ अटैच्ड होता है, साथ ही होता है. तो जाइलम में क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है. तो जाइलम में बहुत सारा पानी होता है. अब क्या होता है, दिस इज अ लो प्रेशर एरिया and we have to create at least a high pressure area in the phloem so that the food can be transferred here. So what happened in this, the concentration of sucrose is ज़्यादा, here water is ज़्यादा. तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है but sucrose का अमाउंट ज़्यादा है, तो water moves into it and creating a high pressure area. तो यहाँ पर high pressure बन जाता है. अब high pressure जब इस ट्यूब में क्रिएट हो जाता है तो ये प्रेशर डाइवर्ट कहाँ होगा, somehow it is shifted towards the low pressure area. So this is a low pressure area and the food is shifted to the non green areas. So बड़ा सिंपल सी कहानी है कि एक स्टेम के अंदर if we talk about a green portion, that is a leaf, and leaf creates the food in the form of sucrose, and that food is forcefully pushed into the phloem with the help of ATP molecule, and this actively transported into the phloem. और जब phloem में सुक्रोज का अमाउंट ज़्यादा होता है तो जाइलम इसके साथ ही है. जाइलम से में वाटर का कंटेंट हायर है एज कम्पेयर टू द फ्लोएम, सो वाटर मूव्स इन, वाटर जाइलम से फ्लोएम में चला जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लोएम के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ये हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है इन द फ्लोएम, एंड दैट इज द नॉन ग्रीन पोर्शन एंड द फूड इज सप्लाइड like this in the phloem. And the process in the phloem of the transportation of the food is known as translocation. इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि translocation actually food conduction को बोलते हैं और transportation word is used for the water conduction, and the transpiration word is used for the loss of water from the leaves into the air, right? So this is all about the transportation of plant, and in the next video we'll be discussing about the transportation of animal. So keep learning. Good luck.